Hello student, today is our first lecture, Introduction to Material. Without material there is no engineering. As we are engineering student, in our field everything is made up of with some material. You should understand the material, which type of material used, which type of property of that material have, and all about that material. As an engineer you should understand the properties of material. That's why this subject is introduced in your engineering, that is material science or material technology. So let us see the introduction about engineering materials. Now let us see first classification of material. Type of material. Materials can be divided into the following categories. First category is crystalline and second is amorphous. Now your question is, what is crystalline and what is amorphous? First crystalline, second amorphous. Now let us see crystalline material. Crystalline material, there are materials containing one or many crystal. In each crystal, atoms or ions show a long range periodic arrangement. Means crystalline material is that crystal is there. All metals and alloys are crystalline materials. These include iron, steel, copper, brass, bronze, aluminium. These are crystalline material. So there are materials containing one or more crystals, that is crystalline material. Now let us see the amorphous material. Amorphous material. The term amorphous refers to a material that do not have regular periodic arrangement of atoms. Means amorphous material atoms are not periodically arranged and not रेगुलर नहीं है, ऐसे जो है दैट इज एमॉर्फस मटेरियल. ग्लास इज एन एमॉर्फस मटेरियल. ओके, नाउ लेट अस सी another classification of material. This classification is second type of classification or another useful classification or general classification. First, metals. As we know, we see outside or in the world there are different metals which we used. We make ornaments by gold, we make a furniture by wood. All materials is there. So first metal, second ceramics, third polymers, and composite. This is useful classification of material. Now let us see major classes of materials. Metals. Metals again divided into two types. Ferrous, that is iron and steel. Iron and steel, ferrous. Non-ferrous metals and alloys. First ferrous and second non-ferrous metals and alloy. Second, ceramics. Ceramics, structural ceramic, refractoriness, whitewares, glass, electrical ceramics, chemically bonded ceramics. These are the classification of ceramic. Now let us see polymers. Polymers means plastics and elastomers. Polymers is divided into two types, plastics and elastomer. Next, composite. Particularly composite. Composite means combination of 2-3 material, that is composites. Now see the detailed classification of engineering material. Okay, engineering material divided into four major type. Metals is divided into two type, ferrous, non-ferrous. Okay, ferrous, steel, stainless steel,
non-ferrous, aluminum, copper, titanium, tungsten and other. Okay. Now second type, plastic. Plastic again is divided into three types: thermoplastic, thermoset and elastomers. Example of thermoplastic: acrylic, ABS. Okay. Then thermosets example polymers. Then next, elastomers example rubber, silicon. In chemistry you learn this already in 12th class: thermoplastic, thermosetting. Okay. Next type, ceramic and others. Ceramic is used where temperature is very high. Ceramic example glasses, graphite, diamond is a example of ceramic. And fourth and last is composite means combination of two or three different material: reinforced plastic, metal, ceramic, laminates are the example of composite. Now properties of material. As we see, all these materials have different properties. So as an engineer you should understand all the properties of material, and by using that property you use for your field or application for the purpose of problem solving in engineering field. As wood, for furniture you used wood, and for other purpose you use different other materials. So properties of material is very important. So let us see the properties of material. An alternative to major classes, you may divide materials into classification according to important properties. One goal of material engineering is to select material with suitable properties for a given application. Means आपका गिवन अप्लीकेशन से जो प्रॉपर्टी सुटेबल है दैट मटेरियल यू हैव टू सिलेक्ट. अगर आपकी गिवन अप्लीकेशन से आपका मटेरियल मैच नहीं करता तो वो मटेरियल वहाँ पे फेल हो जाएगा. ओके. सेकंड, जस्ट एज अ क्लास ऑफ materials, there is a some overlap among the properties, so the divisions are not always clearly defined. Properties of materials. Important properties of material. So let us see the properties. First property, mechanical property. Second, electrical property. Mechanical property means strength, ductility, malleability. Electrical properties means example electrical conductivity, dielectric properties, magnetic properties. Optical property means as a glass transparent रहता है, that is optical property. Corrosion properties means some metals are corrosive, some are non corrosive. Biological property का example, some metals are poisonous, some materials are poisonous, that is the example of biological property. Okay. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. मैकेनिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. इलास्टिसिटी एंड स्टिफनेस, ये सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी. इलास्टिक है या मटेरियल या नॉन इलास्टिक है, उसका स्टिफनेस कैसा है. नेक्स्ट है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी कैसी है प्रॉपर्टीज़, स्ट्रेंथ कैसी है, हार्डनेस कैसी है, ब्रिटलनेस कैसा है, टफनेस कैसा है, फटिक कैसा है, क्रीप कैसा है. ये सारे प्रॉपर्टी आपने इससे पहले फिजिक्स में पढ़े होंगे. स्ट्रेंथ पढ़ा है आपने, ब्रिटलनेस पढ़ा है, टफनेस पढ़ा है, फटिक पढ़ा है, और ये सारे प्रॉपर्टी आपने 12th में पढ़ा है. तो आपका रिवीजन हो रहा है. ऑल दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ओके. नाउ लेट अस सी द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी. सपोज
कोई मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक को जल्दी से कंडक्ट कर लेता है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है, दैट इज कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में आता है पोलराइजेबिलिटी, कैपेसिटेंस, फेरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, pyroelectric properties. These are the dielectric properties. In next lecture we understand the dielectric properties. Now आप इतना ध्यान में रखो कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जैसे मैग्नेट के भी टाइप रहते हैं, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन है एंड ट्रांसमिशन है, ये सारे जो प्रॉपर्टी है वो अंडर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आती है। सपोज आपको कोई एप्लीकेशन में ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो, इन दैट केस यू हैव टू यूज द पर्टिकुलर दैट मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोरोजिव प्रॉपर्टी। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है करोजन। करोजन से क्या होता है कि मटेरियल की डिके होता है, मीन्स उसका लाइफ कम होता है। सो अगर आपको अंडर सी कोई मटेरियल यूज़ करना है तो उसका करोजिव प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मीन्स एंटी करोजिव मटेरियल होना चाहिए। जहाँ पे वाटर का काम है वहाँ पे एंटी करोजिव मटेरियल यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, टॉक्सिसिटी और बायो कंपैटिबिलिटी। टॉक्सिसिटी मीन्स मटेरियल पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, ये सारा आपको बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में पता चलता है। ओके, अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी, व्हेन अ लोड इज अप्लाइड ऑन अ मटेरियल इट में डिफॉर्म द मटेरियल। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, मैकेनिक्स में पढ़ा है। लोड अप्लाई करने के बाद मटेरियल क्या होता है, डिफॉर्म होता है। व्हाट डू फोर्स एक्सटेंशन और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लुक लाइक। व्हेन लोड अप्लाई होता है तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा आता है फॉर डिफरेंट मटेरियल। नाउ ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट है सिरेमिक, सेकंड है मेटल और बाद में है पॉलीमर, और ये स्ट्रेट लाइन जो है दैट इज इलास्टोमर। अब ये ऐसे बिहेव करते हैं व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर मटेरियल। ये आपको ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये ग्राफ देते हैं और पूछते हैं कि सिलेक्ट द राइट ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ओके, ये हो गए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नाउ सी वन बाय वन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इलास्टिसिटी मतलब क्या, स्टिफनेस मतलब क्या, डक्टिलिटी मतलब क्या, स्ट्रेंथ मतलब क्या। ओके, नाउ लेट्स सी इलास्टिसिटी एंड स्टिफनेस। इलास्टिसिटी deformation is a deformation produced in a material which is fully recovered when the stress causing it is removed. इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं आप, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है और वो फोर्स पूरा रिकवर कर लिया है तो उसने फोर्स रिमूव करने के बाद जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो डिफॉर्मेशन चला जाना चाहिए और ओरिजिनल शेप में आना चाहिए, दैट इज इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है स्टिफनेस। स्टिफनेस इज अ qualitative measure of the elastic deformation produced in a material. A stiff material has a high modulus of elasticity. Stiffness, अभी कोई मटेरियल स्टिफ रहता है तो उसका क्या रहता है, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस आपने फिजिक्स में पढ़ा है। ओके, सो ये हो गया इलास्टिसिटी एंड स्टिफनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स क्या, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्ट्रेच और बेंड परमानेंटली विदाउट ब्रेकिंग। अब यहाँ पे डक्टिलिटी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एग्जांपल के लिए आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, वायर। सपोज ये वायर है, मैंने जो ड्रॉ किया है, अगर ये डक्टाइल है मतलब वो कितना भी मैं खींचूँ तो वो क्या होगा,
एलोंगेट होगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा, दैट इज डक्टिलिटी. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, strength. अब strength, yield strength is the stress that has to be exceed so that the material begin to deform plastically. Tensile strength is the maximum stress which a material can withstand without breaking. strength ये एक प्रॉपर्टी है. अब strength मतलब क्या, अगर कोई मटेरियल पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो कितने देर तक विथस्टैंड कर सकता है दैट फोर्स को विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज़ द स्ट्रेंथ. मतलब आप कंटिन्यूसली हैमर कर रहे हैं लेकिन वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, दैट इज़ द स्ट्रेंथ. नेक्स्ट, हार्डनेस. हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस टू प्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल. हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अ मटेरियल. सपोज कोई मटेरियल हार्ड है तो उसमें अगर आप कुछ भी पेनिट्रेट कर रहे हैं, सपोज ड्रिल मशीन से पेनिट्रेट कर रहे हो तो पेनिट्रेट नहीं होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनेस. ब्रिटलनेस एंड टफनेस. द मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल इफ इट फेल्स विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो दैट मटेरियल इज ब्रिटल. टफनेस इज डिफाइंड एज द एनर्जी एब्सॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर. अब टफनेस है मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर. फ्रैक्चर होने से पहले जो भी एनर्जी है, फोर्स लगाया है, वो एब्सॉर्ब कर लेगा, दैट इज टफनेस. फटिक. फटिक फेल्योर इज द फेल्योर ऑफ अ मटेरियल अंडर अ फ्लक्चुएटिंग लोड. फ्लक्चुएटिंग लोड मतलब क्या, साइक्लिक लोड लगाया. सपोज एक बीम है या रॉड है, वो घूम रहा है कंटिन्यूसली और आपने उस पर लोड लगाया है तो दैट इज फ्लक्चुएटिंग लोड और साइक्लिक लोड. नेक्स्ट है क्रीप. क्रीप इज द टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर अ कांस्टेंट लोड एट अ हाई टेम्परेचर. अभी मैंने आपको एक शाफ्ट का एग्जांपल दिया या फिर बीम का एग्जांपल दे रहा हूँ. उसमें क्या है कि टाइम आता है क्रीप में, टाइम डिपेंडेंट. मतलब जैसा जैसा शाफ्ट घूमेगा तो वो सडनली ब्रेक नहीं होगा लेकिन आफ्टर सम टाइम मे बी चांसेस ऑफ ब्रेकिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर और लोड. ओके, सो ये पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का और डिफरेंट मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल यूज्ड इन मटेरियल साइंस और मटेरियल टेक्नोलॉजी. होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट. और मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको सिलेबस दिया था और रेफरेंस बुक का नाम भी दिया था. ओके, थैंक यू.